Good morning, children. Let's move ahead today with a new topic of this chapter, and that's the protection for the elderly and helpless. In the previous lecture, we had completed with the rights of the children and the reasons for child labor and the maximum number of child labor we see in our country and the reasons for it. All this in detail we had seen in the previous lecture. Today we move ahead with the problems and of the elderly and helpless and what government has done for their protection. So let's move ahead. The problem of elderly and helpless people is universal, that is world over. It's not that only in our country the elderly people are facing some problems, but it's the world over. And what are these problems related to them? It is related to their physical problem, it's sometimes related to their many other health issues and all, and their loneliness in which they live along with their life. And old age is a natural order, nobody can run away from it. It's responsibility of the society therefore to see that they are well secured, they get protection, and about the welfare of these elderly people, we have to see that they should be taken well care of. So whose responsibility it is that the elderly and helpless people should be taken care of in the society? That is the responsibility of the society itself. Now, presently average age has increased by 4.3 years. मतलब कि अगर पहले लोग अगर say the age was maximum limit I would say for example 65, तो आज 4 साल बढ़ गई है उसमें. That is, a person gets medical treatment and many other emotional support and some security that they are provided because of many reasons. आज एवरेज एज बढ़ गई है 4 साल ज़्यादा, मतलब by 4.3 years due to the improvement in health related services. And again, due to the modern medical facilities, I would say speedy medical facilities that they are provided. Then medical treatment. And in the year 2001 to 2005, average lifespan in India was 63.5. मतलब कि 2001 to 2005 तक एवरेज लाइफ इंडियंस की रही है 63.5. इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग 63.5 में मर जाते थे. इट्स जस्ट दैट अगर कोई बीमार है तो या वीकनेस आ जाए एज द एज मूव्स अहेड, तो कहीं ना कहीं एक एज लिमिट आ जाती थी मेजॉरिटी में हमारी कंट्री में 63.5 64 तक जिंदा रहते थे लोग. आज वही एज लिमिट बढ़ गई है हमारी कंट्री में टू 67 68 ईयर्स. And in India, in the decade 2001 to 2011, number of elderly people also has increased by 2.75 crores. मतलब कि अगर पहले 2 करोड़ थे हमारे यहाँ elderly people, तो आज 2.75 ऐड हुए हैं उसमें. By 2.75 मतलब when we write by, तो by 2.75 करोड़ मतलब 2.75 करोड़ ऐड हुए. इफ आई से elderly people has increased to 2.75 TO2, 2.75 मतलब कि 2.75 तक पहुंचा है. एंड 2.75 बाय लिखो तो ऐड करना है हमें. तो इन इंडिया नंबर ऑफ elderly people has increased by 2.75 करोड़, मतलब काफ़ी इंक्रीज हुए. सिंपल रीज़न, सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड, प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन टाइम इज प्रोवाइडेड. आई वुड से स्पीडी मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल नाउ एंड इवन मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल. तो जो लोग पहले बिना इन मेडिकल ट्रीटमेंट के या स्पीडी मेडिकल ट्रीटमेंट की नहीं मिलने की वजह से जो मर जाते थे, आज वो ही काफ़ी लंबा जी रहे हैं. And according to one research or estimate, number of elderly women was 5.28 crore in 2011, while the number of elderly men was 5.11 crores. The highest number of elderly people are in Kerala and minimum number they say is in Arunachal Pradesh. I would say that in Gujarat the number of elderly people however is approximately 35 lakhs.
तो गुजरात में एल्डरली पीपल अप्रॉक्स हमारे यहाँ 35 lakhs है. Because of this increasing population of elderly people and increase in average lifespan, social and physical problems also are coming up. अब क्योंकि elderly people के पॉपुलेशन में हम इंक्रीज देख रहे हैं, तो साथ साथ कई और सोसाइटी में प्रॉब्लम्स भी क्रॉप अप हो रहे हैं. फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो आर कमिंग अप, एंड लेट्स सी व्हाट इट इज. नाउ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड urge मतलब एक तुम्हारी eagerness to live as in a nuclear family. तो children are forgetting their ethical responsibilities towards elderly people. Ethical मतलब their manners, discipline, love, care, protection, ये सारी जो values जॉइंट फैमिली में मिल जाती है बच्चों को, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे या बड़े भी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होते जा रहे हैं टूवर्ड्स देयर ग्रैंड पेरेंट्स, टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स. And as I told you, values and culture are diminishing, and due to nuclear families, elderly people are forced to live in old age homes. I'm not saying it is in each and every family. Even today, I see in my surrounding many joint families living together happily, where the problems अगर आते भी हैं तो पता ही नहीं चलता कैसे easily उसमें से वो लोग फेस करके बाहर आ गई फैमिली. एंड इफ़ इट्स अ प्रॉब्लम फेस्ड ऑफ वन पर्सन, तो पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है उसे, तो दैट पर्सन डजंट मूव इनटू डिप्रेशन. ही इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन हिज टोज, एंड बिकॉज ही गेट्स लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स. वैसे बच्चे भी अच्छी तरह से बड़े हो रहे हैं जॉइंट फैमिली में, विथ लॉट्स ऑफ like care and protection given not only by parents, but that there are grandparents also giving more of love to them and teaching them good values, and there are lot many advantages I would say of joint family. Yes, but western culture कुछ तो छोड़ के गई थी यहाँ पे, और यहाँ हम थोड़ा बहुत उठा के भी लाए वेस्टर्न कंट्रीज से. तो ये सारी चीज़ें जो हम लेके आए वो क्या है? Lot many things, like we see change in our lifestyle, change in food habits, education, and you would say lifestyle has changed. तो उसमें वेस्टर्न कल्चर से हम जो उठा के लाए वो एक न्यूक्लियर फैमिली. तो ये इसकी वजह से काफ़ी कुछ आई वुड से देर आर मोर डिसएडवांटेजेस रादर देन एडवांटेजेस. हाँ, एडवांटेजेस हो सकते हैं एक दो, लेकिन उसके सामने डिसएडवांटेजेस काफ़ी है. दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन. And elderly people are forced to live in old age home due to lack of sensitization, that is lack of emotions, and in order to attract attention of people towards problem of elderly people. अब कई लोग भूल ही जाते हैं कि भाई elderly people भी इस planet पे रह रहे हैं उनकी कंट्री में, तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर सकते जो यंगस्टर्स हैं या द चिल्ड्रन एंड ऑल. तो उनका ध्यान फिर से इस और लाने के लिए हर एक कंट्री की गवर्नमेंट ने तो काफ़ी मेहनत की है, बट एट द सेम टाइम UN also has announced the year 1999 as International Elderly Year. Along with this, 1st October every year we celebrate as World Elderly People Day at international level. So that's very interesting, जो शायद तुम्हें भी नहीं पता था अब तक. तो I would say this is the age where you can grasp all these thoughts and start walking on picking up these values of more care towards your elderly people in your surrounding, not only your grandparents, but I would say अगर कहीं पे किसी को तुम देखो कि उनको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, I would say create such values, such discipline in your life that you are on your toes to support the elderly people and the needy people in your surrounding, right? मुझे पता ही है कि तुम वो करते ही होगे, but just as my nature कि भाई बता दो बच्चों को कुछ और जो शायद नहीं पता हो या पता है लेकिन कई बार योर एज फैक्टर मे बी कि ठीक है हो जाएगा, मम्मी है कर लेगी, पापा सपोर्ट कर लेंगे. तो I would say that you as a growing child create and तुम्हारी डेली प्रोसेस में ऐड कर लो ये सारे वैल्यूज़, राइट? जो कहीं पे
छिप के बैठे हैं तुम में, है तुम्हारे पास, लेकिन वो अभी तक शायद तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में है, तो ब्रिंग इट in front of you and a good time for you to be very supportive to the people. So remember your objective also over here. The next is the following steps are taken by the government to give security and safety to the elderly people. तो 1999 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, दैट इज नेशनल पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीजन, अकॉर्डिंग टू विच एल्डरली पीपल आर गिवन पेंशन. अब पेंशन मतलब ये कि जब काम पे से एक लंबी बहुत एक ड्यूटी फुलफिल करने के बाद, ड्यूटी यहाँ पे जैसे कि जॉब पे जाते हैं पेरेंट्स, तो टिल द एज ऑफ से 53, 55, 58 मे बी 60 तक काम कर रहे हैं, फिर रिटायर हो रहे हैं उस कंपनी से, और तो हर महीने जो इतने साल उन्होंने काम किया 30 इयर्स 40 इयर्स, तो हर साल उनकी इनकम या उनकी सैलरी से थोड़ा सा अमाउंट कट होके उनके अकाउंट में डिपॉजिट होता था बाय द कंपनी ओनर, राइट. अब वो रिटायर हो रहे हैं तो वो ही पैसे जो उनके नाम से जमा हुए थे 30, 40, 45 इयर्स तक, वो हर महीने एक चेक तुम्हारे घर आ जाएगा. और क्योंकि पहले ये सिस्टम थे कि जाके कलेक्ट करते थे शायद, बट टुडे इट कम्स एट योर होम, एट योर डोर स्टेप, एंड या तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाते हैं तुम्हारे पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में. तो इट्स अ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड कि ये पेंशन जो पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे आ रहे हैं, तो दे हैव नॉट टू आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन. वो एक फीलिंग आ जाती है कि अभी भी हमें हाथ फैलाने पड़ रहे हैं. सो उस फीलिंग से भी वो बाहर रहते हैं. दे फील हैप्पी, दे फील सिक्योर दैट वी हैव बिग अमाउंट ऑफ मनी इन आवर बैंक अकाउंट, तो हम हमारी तरीके से अब आगे की लाइफ हम जी पाएंगे. सो दोज ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स आर वेरी, दे लिव वेरी हेल्दीली विदाउट टेंशन, और एक अच्छे से माहौल में लोग, छोटे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स भी खुश हैं, ग्रैंड पेरेंट्स खुश हैं, एक अच्छी सी फैमिली डेवलप हो रही है. तो बहुत सारा कुछ सोच के गवर्नमेंट ने ये एक पेंशन स्कीम निकाली है फॉर द सीनियर सिटीजन. दैट वाज इन द नेम ऑफ इंदिरा गांधी, एक्स PM, many years back where she was murdered. And तो इंदिरा गांधी नेशनल सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पेंशन स्कीम निकली है. सेकेंड, अंडर वेरियस स्कीम्स फॉर एल्डरली पीपल दे आर गिवन मोर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय देम इन पोस्ट ऑफिस और बैंक. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे नाम से अकाउंट स्टार्ट हुआ है, या पापा के नाम से, या मम्मी या बड़े भाई बहन के नाम से, या तुम्हारे अंकल आंटी जो साथ में रह रहे हैं उनका बैंक अकाउंट है, तो किसी का भी जो बैंक अकाउंट हो तो उनको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलता है कि भाई तुमने 2 लाख जमा करवाए, या 10,000 जमा करवाए, या 5,000, तो अमाउंट के हिसाब से तुम्हें हर महीने उसमें इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा. तो अगर तुमने 10,000 डिपॉजिटेड है तो नेक्स्ट मंथ वो हो जाएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10,500, फिर उसके बाद के महीने में 10,000, 1,000, या इट कुड बी नॉट ऑलवेज 500. जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट यू सी इन द बैंक. तो 10,000 पे 500 मिले, अब 10,500 हो गए, तो अब 10,000 पे 2 महीने के बाद नहीं मिलेगा, 2 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं 10,500 पे कैलकुलेट होगा. तो इट कुड बी नॉट 10,000, नाउ ओनली 500 एडेड, इस बार शायद 700 ऐड हो जाए, तो 700 and 500 इज, इट विल बी 10,500 पे और तुम्हें 700 मिल रहे हैं, तो वो 11,000 से ज़्यादा हो गए. अब जो नेक्स्ट 3rd मंथ में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 500 नहीं मिलेगा, अब वो 11,200 पे कैलकुलेट होगा. So this you must have been already studying or you already studied in your previous classes in maths कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम. तो this is how एक अच्छा इंटरेस्ट
उनको एल्डरली लोगों के बैंक अकाउंट के डिपॉजिट पे ऐड होता रहता है, बट ये इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है देन दी नॉन एल्डरली पीपल के अकाउंट से, राइट। तो ये एक सपोर्ट मिल रहा है उनको। देन मेल फीमेल आर गिवन 30 to 50% कंसेशन ऑन डिस्काउंट इन बस रेलवे एयर टिकट्स। हाँ, कई कंट्रीज ऐसी है, जैसे इफ़ यू गो टू लंदन यू विल सी कि वहाँ पे एल्डरली लोगों को द मोमेंट यू क्रॉस 60 everything is free from the government, like I would say the parlors, that is not the pan parlor, it is beauty parlors। जैसे हम कहते हैं ना कि हम के यहाँ बाल कटवाने आजकल तो नहीं जा रहे, बट पहले जब जाते थे बॉयज़ और लड़कियाँ जाती थी या मम्मियाँ जाती थी ब्यूटी पार्लर्स में, तो वो 50% ऑफ यहाँ पे शायद इन सारी जगहों पे नहीं मिल रहा हमें इंडिया में, बट इफ़ यू गो टू लंदन वहाँ पे it's totally free after you cross 60. Then you have bus transportation, train transportation free, you get a cottage free of cost to live in, and with 2-bedroom living room, kitchen, or it could be 3-bedroom living room, लेकिन एक cottage मिल जाता है उनको। yearly you get about 70 to 75,000, जैसे हमारी इंडियन करेंसी कैलकुलेट करो तो उतने पैसे मिल जाते हैं हर साल। एंड दिस इज़ हाउ ये सब मिल रहे हैं उनको, जो उन्होंने इतने साल जो मेहनत की, कमाई की और जो टैक्स पे किया था गवर्नमेंट को। अब हमारे यहाँ आई नीड नॉट टेल एनीथिंग, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ 50% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट मिल जाएगा एल्डरली लोगों को इन बस ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट बस, नॉट वॉल्वो, एंड रेलवे, और many times you see in some of the air tickets। And state government, yes, has also opened old age home with great facilities in every district. In the cities, gardens have been developed. You can see Amul Garden, जैसे हम देखते हैं हर एक जगह पे, जैसे बहुत सारी जगह पे है, प्रहलाद नगर पे है गोतीला गार्डन। इफ़ यू गो टू सेटेलाइट रिंग रोड, तो वहाँ पे हर एक जगह पे जहाँ पे अमूल के पार्लर होंगे उसके पीछे एक बहुत बड़ा, एज द एरिया प्रोवाइड्स, यहाँ छोटा सा भी गार्डन तो होगा ही, कंपल्शन इट इज़। एंड वो मेंटेन भी अच्छी तरह से हो रहा है। तो ऐसे एल्डरली लोगों के लिए अलग अलग जगह पे यू विल सी गार्डन्स आर देयर। फिर इट ट्राइज टू ऑल्सो सी टू ब्रिंग पीस इन देयर लाइफ थ्रू म्यूजिक, योग, गेम्स, मेंटल एक्टिविटीज़। तो काफ़ी चीज़ें आजकल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एल्डरली लोगों के लिए। नाउ गवर्नमेंट ऑल्सो इज इम्प्लीमेंटेड Parents and Senior Citizen Care and Welfare Related Law in 2007. Yes, there are some examples which we would have enjoyed somewhere when I would have been and you would have been face to face, both of us. हाँ, वो थोड़ी limitation आ जाएगी यहाँ पे, where I would not give those, I would say, examples over here. But I'm trying my level best to give you maximum examples so that you enjoy the इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स लेक्चर स्पेशली। तो गवर्नमेंट ने पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए भी, बेचारे पेरेंट्स, समटाइम इट हैपन्स, तो यू गॉट अ हिंट, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल मैं देती रहती हूँ। तो पेरेंट्स के वेलफेयर और केयर के रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे टाइम पास तो नहीं बनाया होगा कोई भी लॉ, कहीं ना कहीं कई फैमिलीज में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उनके वेलफेयर के लिए, इट्स नॉट दैट ऑलवेज फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर वी हैव टू रन आफ्टर। Parents are equally important, grandparents are that equally important, I would say। तो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए भी गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ बनाए in 2007 टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। यस, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगी, बट डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी फैमिलीज में होता होगा। वी हैव नॉट हर्ड, वी हैव नॉट सीन इन आवर नियर बाय, इन आवर सराउंडिंग्स, इन एनी फैमिलीज, but it does happen that the parents are not taken care of. There are domestic violence, exploitation, abuse of the senior citizens and all, and of parents. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2007 में एक लॉ पास किया। Under this provision, under this you will say that provision has been made to punish those children who torture their parents. Yes, again, it's very true. It does happen in many families. Thank God that we have not seen all these things in our family or in our surrounding. So we are lucky to be in a good atmosphere, good environment.
बट आई हैव हर्ड ये समवेयर दैट, क्योंकि देखो अगर ये नहीं होता तो गवर्नमेंट थोड़ी ना हमारी ऐसे टाइम पास लॉ बनाएगी कि चलो भाई जो पेरेंट्स हेरेस हो रहे हैं उनके लिए एक लॉ बना दो, क्योंकि ये होता है हर एक कंट्री में। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री में भी ये होता है, कहीं पे ना कहीं चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को हरेस करते हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वायलेंस हो रही है फैमिली में। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए कोर्ट ऑफ लॉ ओपन है टू सपोर्ट देम, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली पीपल इज ऑफ देयर फैमिली एंड रिलेटिव्स। दे हैव द राइट टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। अब पहले माँ बाप कमाते हैं तो बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, अब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कमाने लगे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। आई वुड नॉट से कि माँ बाप कमा रहे हैं तो उनको ये नहीं कहना है कि भाई आप रिटायर हो जाओ वॉलंटरली, अब मैं कमाऊंगा आप बैठ के आराम करो। दैट शुड ऑल्सो नॉट बी डन, क्योंकि जब तक हम काम करेंगे, आई वुड से टिल द एज ऑफ 70, 80, any age, if you're fit and fine you can work till any age। तो जब तक काम कर रहे हैं पेरेंट्स, लेट देम वर्क, दैट कीप्स देम हैप्पी, दैट कीप्स देम एनर्जेटिक, दैट कीप्स देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड से। तो कभी भी पेरेंट्स को ये तो नहीं कहना है कि आप अपनी जॉब छोड़ दो। लेट देम वर्क, लेट देम अर्न, लेट देम रिमेन कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, लेट देम बी वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। बट अगर वो काम नहीं कर सकते और कहीं पे रिटायर हो गए, तो आई वुड से देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज नाउ दे आर अर्निंग, नाउ इज देयर टर्न टू गिव बैक what they took from their parents and grandparents, and what did the children take and what do they keep on taking, that is all। जो बड़ा खर्चा जो पेरेंट्स उनके जन्म होते ही जो किया, till they get married and still उसके बाद भी माँ बाप खर्चा करते रहते हैं, and the biggest thing, parents and grandparents have taken care, so that is the thing that the children should give back now। And then grandparents and parents have given the biggest thing in their life, and that is love, lots of love. That is what we have to give to our parents and grandparents. But yes, I always say that somewhere in this life journey, somewhere in our responsibility of our own family, I have seen that somewhere we miss out many things in our life. We miss out really many things. Like I told you before, that हाँ साथ में रहते तो we are always together, we take care of our parents and don't miss out that। But for me it was one, I had already shared you that when I shifted from Bombay to over here, it was there in the back of my mind, oh my family is safe over there, we don't have anyone in Ahmedabad over here, कोई relatives नहीं है except my 2 daughters family। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा यही मानती, ओह माई मम्मा इज़ देयर, माई भैया भाभी इज़ देयर, माई सिस्टर इज़ देयर, या रोहित सर की फैमिली है वहाँ पे। तो इन सबको मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। बट व्हेन इट केम ऑन माई ओन मदर, आई सेड येस, दिस इज़ वॉट समवेयर, कभी डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, कि वो लोग हैं वहाँ पे अभी भी। She was there, but when I took it for granted, I didn't go often to see her. I could have gone Sunday to Sunday, but yes, even today sometime I regret, even after this more than 40 days of her leaving us, I could have gone to see her, but it's okay। With you people, of course, the things become easy for me। I always, you can see me as I always tell you, but when I give lectures, I always give lectures in a way that my children are in front of me, though I can't see you from here, I can see only the laptop screen, but still I always, my lecture giving is like as standing in class, standing on that platform and seeing that my children are over there giving a big smile, listening to me, some are there dozing off on the last bench, and I have to say, hey, baby wake up, lecture is on। तो अभी सो मत जाना, सोने के बाद देख लेना, बहुत नींद आ रही है तो
लेकिन जागना और देखना पूरा लेक्चर एंड लिसन टू इट। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ, येस आई ड्रिफ्टेड बैक, मे बी आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट बिकॉज इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू दिस एल्डरली पीपल वे एक्चुअली दे नीड अस व्हेन चलो जो दूर चले गए हैं, लाइक फॉर वी हु केम सो फार अवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड तो शायद आई वुड से काम में कहीं पे हम दौड़े नहीं वापस उनको देखने व्हेन दे वर सो फिट एंड फाइन, और अब लग रहा है ओ गॉड व्हाई डिडंट आई गो। तो ये कभी आगे जाके महसूस ना हो किसी को भी। आई वुड ऑलवेज से यू आर लकी इनफ टू बी विथ योर पेरेंट्स, टू बी विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स। योर पेरेंट्स आर लकी कि वो अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं यहाँ पे एक सिटी में। बी विथ देम एंड येस यू ऑल आर सो लविंग चिल्ड्रन दैट यू ऑल आर ऑलवेज, जो इतना प्यार दिखा रहे हो तो घर में तो कितने प्यारे बच्चे होंगे तुम। दैट आई हैव 100% फेथ ऑन ऑल माई लविंग चिल्ड्रन। सो गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ऐसे लॉ पास किए होंगे कि कई फैमिलीज ऐसी हैं जो माँ बाप का ध्यान साथ में रहते हुए नहीं रख रही, राइट। दे डोंट गेट समटाइम इनफ फूड टू ईट, दे डोंट गेट टाइमली hygienic condition to live in. So they have the right to get the maintenance from their children, and central government has implemented the program to give respect or to honor, to take care of the senior citizen in return for their contribution. अब आज जो हम डेवलपमेंट हमारे आसपास में देख रहे हैं, जैसे कि से एक ब्रिज को बनने में 2-3 साल, अब से एनी ब्रिज लाइक सुभाष ब्रिज या कोई भी ब्रिज या एनी जैसे बॉम्बे का सी लिंक, ऐसे काफ़ी ब्रिजेस हैं ऑल ओवर दी कंट्री, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज़ में, टाउन्स में। तो जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ऑफ दिस ब्रिज। तो ये जो फ्लाई ओवर्स हैं या ब्रिजेस हैं उनको बनने में 2-3-4 साल लग जाते हैं। अगर कुछ वजह से काम रुक गया तो फिर और लंबा चला गया, लेकिन उसको बनाने वाले आज के जो अभी जो हैं, जो 10 साल के बच्चे, 20 साल के या 25-30 ईयर्स के बच्चे, उन्होंने पार्ट नहीं लिया था। दोज थिंग्स वो जो बहुत साल पहले बन चुका था उसको बनाने में कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के एज के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। सो एक्चुअली वी हैव टू बी थैंकफुल टू ऑल द पीपल फॉर द डेवलपमेंट दैट यू एंड मी वी ऑल आर एंजॉइंग ऑन द प्लैनेट, राइट। एंड दे आर द पीपल हु आर नॉट टेकन केयर ऑफ, जबकि उन्हीं की मेहनत का हम एंजॉय कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उनको ऑनर भी कर रही है, राइट। नाउ देयर आर सम एंटी सोशल एक्टिविटीज, सच एन इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी और बिहेवियर विच इज अगेंस्ट रूल्स प्रपोज बाय लॉ इन द सोसाइटी इज कॉल्ड एंटी सोशल एक्टिविटी। अब देखो जैसे क्लॉक, राइट, एंड देन देयर इज एंटी क्लॉक, मतलब अगेंस्ट, ऑपोजिट जाना। तो जैसे क्लॉक, एंटी क्लॉक, तो वैसे ही सोशल एक्टिविटी इज अ गुड एक्टिविटी, वेलफेयर एक्टिविटी। एंटी सोशल मतलब गलत एक्टिविटीज हो रही है, इविल एक्टिविटीज हो रही है सोसाइटी में। सच एन इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी और बिहेवियर एज आई टोल्ड यू विच गोज अगेंस्ट द रूल्स दैट आर लेड डाउन बाय द लॉज ऑफ अ कंट्री और सोसाइटी। वी ऑफन सी सम क्रिमिनल और एंटी सोशल और रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज इन द सोसाइटी। कई बार बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है हमारी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं हम न्यूज़ चैनल पे देखते रहते हैं या पेपर में पढ़ते हैं, लाइक मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग, रॉबरी, चीटिंग, ट्रिकरी, साइबर क्राइम एट्सेट्रा, विच आर ऑल कॉल्ड ब्लू कॉलर क्राइम। अब देखो 2 टाइप के जॉब होते हैं, वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर। वाइट कॉलर मतलब AC ऑफिस में बैठो और एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जैसे बैठो, और वर्क इन अ बैंक और वर्क एज अ टीचर, डॉक्टर, लॉयर एट्सेट्रा। या एक बड़े बिजनेसमैन ऑर्डर छोड़ रहे हो अपनी ये बड़ी ऑफिस में बैठ के। देन देयर आर ब्लू कॉलर क्राइम, बट यहाँ पे क्राइम नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू कॉलर जॉब, मतलब कि झाड़ू पटका मारना, टी स्टॉल पे काम करना, एंड दिस आर सम ऑफ दी ब्लू कॉलर जॉब। वैसे क्राइम होते हैं। अब बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे किसी को पता भी नहीं चला और तुमने किसी को चीट कर लिया, राइट। या आई वुड से जैसे कि 100 रुपये का डिब्बा ग्रेनरी स्टोर वाला तुम्हें 150
50 में बेच रहा है कि भी स्कैसिटी है करके, राइट। अब ये बहुत इजीली उसने चीट किया विद अ बिग स्माइल ऑन द फेस, दैट इज व्हाइट कॉलर क्राइम. Better I would say white collar crime is like bribe, hoarding, एंड किसी की ज़मीन हड़प कर लेना, लैंड एंक्रोचमेंट, ब्लैक मार्केटिंग, अभी जो मैंने डिब्बे के बारे में बताया, टैक्स इवेजन, टैक्स नहीं पे करना, वो भी एक चीटिंग हुआ, वो एक वाइट कॉलर क्राइम है, राइट. ब्लू कॉलर क्राइम भी बहुत सारे हैं, खून खराबा, राइट. नाउ करप्शन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये तो वर्ल्ड ओवर है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, करप्शन मीन्स द मिसयूज ऑफ पब्लिक पोजीशन फॉर पर्सनल बेनिफिट. अब देखो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, योर 3 मार्कर ऑल्सो, तो पूरे करप्शन पे जितना भी दिया है लिखना है. 2 मार्कर के लिए भी दिया होगा, बट मोस्टली इट इज आस्क्ड फॉर डिटेल. एंड करप्शन इट वाज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम once or twice for in English literature as a essay writing. सो करप्शन की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लिए. इट मीन्स द मिसयूज ऑफ पब्लिक पोस्ट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट. मतलब कि गवर्नमेंट की जॉब में जो है वो अगर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कोई गलत काम करे, अपने पब्लिक पोस्ट को मिसयूज करे, उसी को हम करप्ट कहेंगे और उस सिस्टम को हम करप्शन कहेंगे. प्राइवेट कंपनीज में होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोगों को इनफ पे मिल जाती है, बहुत बड़ी पे. तो यूजुअली प्राइवेट कंपनीज में देयर इज नो करप्शन. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिखा है पब्लिक पोस्ट, मतलब कि करप्शन मीन्स अगर हम गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं और उसका मिसयूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, दैट इज कॉल्ड करप्शन. करप्शन ओरिजिनेट्स ड्यू टू मिसयूज ऑफ स्टेटस एंड पावर बाय द पीपल. अब जो गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट पे, रेलवे में हो, बैंक में हो, BSNL, आई विल से जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू अबाउट द गवर्नमेंट पोस्ट, डोंट टेक इट एनीथिंग पर्सनली. तो कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पे हो जो अपने पावर का मिसयूज करे, फायदा उठाए, गलत फायदा आई वुड से, दैट इज करप्शन. करप्शन इज एग्जिस्टिंग इन सम ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. हाँ, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज में कहीं पे करप्शन होता होगा, पब्लिक में अगर हो तो करप्शन कहते हैं. पीपल इन्वॉल्व इन करप्शन, द गिवर एंड द टेकर, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर गिल्टी एंड सपोज्ड दैट इज वर्दी टू बी पनिश्ड. करप्शन इन आवर कंट्री एंड फॉरेन कंट्री. करप्शन इज करप्शन, राइट. अब देखो, बफेलो तो बफेलो ही है हर एक कंट्री में, फॉरेन की कंट्री में लाल और हमारे यहाँ काला है, ऐसा तो है नहीं. और I would say children are children, they are the same, loving and naughty. तो वो बाहर की कंट्री को ही यहाँ की कंट्री को बच्चे तो प्यारे ही होते हैं और नॉटी ही रहेंगे, राइट. तो करप्शन वेदर इट इज इन द फॉरेन कंट्री और इन आवर कंट्री इज सेम, बट द परसेंटेज डिफर्स, level of corruption is different. So corruption exists in many countries in smaller large scale in recent time. Now conduct of corruption is seen in different form. अब corruption अलग अलग तरीके से देखोगे. कई बार गिफ्ट का लेना देना होता है, जैसे इफ आई एम करप्ट आई गिव गिफ्ट टू समवन, सामने वाला भी करप्ट ही होगा अगर वो मेरी गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है, फिर मैं अपना काम करवा लूँगी उसके पास और मेरा काम गलत काम करके भी देगा. सो गिविंग एंड टेकिंग ऑफ मनी भी होगी. गिफ्ट प्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉस्टली ऑर्नामेंट्स या फॉरेन ट्रिप्स एंड प्रॉपर्टीज एंड लैंड. एंड कई बार पार्शियलिटी दिखाई देती है बिहेवियर में, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन की डिसीजन इस बाजू जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने मुझे लाख रुपए दिए हैं या 1 करोड़ दिया है तो मेरा डिसीजन गलत जगह पे चला गया, राइट. फेवरिंग रिलेटिव्स, मैं अपने रिलेटिव्स को ही काम पे रखूँगी. एंड फेवरिंग फ्रेंड्स एंड ऑल. तो बहुत अलग अलग तरीके से करप्शन दिखाई देगा. तो करप्शन हैज़ रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी और सोसाइटी विच आर एज फॉलोज. वंस अगेन करप्शन डिटेल में है, तो तुम यहाँ से लेके, सॉरी आई वुड से from this anti-social activity you will start. You will do all this till the corruption
टॉपिक एंड्स, वहां तक हम डिटेल के लिए करप्शन का तुम्हें लिखना है. एंड इन द मिड ऑफ द लेक्चर आई वुड से, क्योंकि बच्चे वॉइस मैसेज ज़्यादा सुनते नहीं, जो ये बड़े बड़े ऑरेंज ग्रीन पिंक जो हम मैसेजेस भेज रहे हैं वो भी बच्चे नहीं सुन रहे हैं, टाइम पे एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर आई गिव यू एंड 2 days टाइम, अगर मेरी एग्ज़ाम जैसे इस बार मैंने फ्राइडे रखी है तो बाय संडे यू हैव टू प्रोवाइड योर आंसर शीट, मेल कर दो, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू बी चेक्ड. एंड दैट इज़ वॉट वी आर वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड. सो प्लीज़ बाय संडे मेरा पेपर और उसी तरह से कुछ आंसर का पेपर भी विद इन 2 days. उनका ट्यूसडे है तो विद इन 2 days you have to submit the paper. So please be on your toes and provide it on time. And one more thing, इंग्लिश में एरो मार्किंग मत दिखाया करो. इंग्लिश में जैसे यहाँ पे पिंक डॉट्स दिखाए गए, ये पिंक डॉट्स या एरो मार्किंग एंड ऑल, प्लीज डू इट इन योर एसेस बट नॉट इन इंग्लिश. इंग्लिश में बच्चों ने 12 से 15 2 लाइन के पैराग्राफ ऐसे राइटिंग में दिखा रहे हैं मुझे, with lots of arrow marking and decoration and all. So I would fold my hands and I please request all my dear children, keep your paper as simple and neat as possible. अब simple मतलब blank मत छोड़ देना, लिखना उसमें लेकिन बहुत ही neat and tidy देना हमें. It becomes very difficult for us. First of all screen पे checking होती है लैपटॉप पे, तो वैसे ही ना it becomes a bit not difficult I would say, but पेपर हाथ में प्रैक्टिकली चेक करने और यहाँ पे चेक करना इज अ वास्ट डिफरेंस. सो प्लीज़, और वैसे भी इंग्लिश के पेपर में कभी हम एरो मार्किंग करते ही नहीं, तो टेक केयर ऑफ इट. सो कम बैक, बिकॉज ऑफ करप्ट बिहेवियर देयर इज डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वैल्यूज डाउन जा रही है. मॉरल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, लव, केयर, प्रोटेक्शन, मैनर्स, डिसिप्लिन, ये सारे मॉरल वैल्यूज कहीं पे अभी कम दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे. तो एंड सोशल पॉलिसी रेगुलेशन, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, ओरिजिनेस इन इकोनॉमी. फिर ब्लैक मनी बढ़ता जाएगा. ब्लैक मनी क्या है वो तो तुम डिटेल में इकोनॉमिक्स में हम करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर में, बट फिर भी यहाँ पे पता होना चाहिए तुम्हें कि ब्लैक मनी इज दैट कि जो हम कमाते हैं लेकिन अब हमने वो हमारे अकाउंट में नहीं दिखाया. जैसे से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अर्निंग 5 lakhs, जस्ट एग्जाम्पल, अभी तो तुम अर्न नहीं कर रहे, 5 लाख कमा रहे हो. 5 लाख में से तुमने गवर्नमेंट को दिखाया कि भाई मैं 3 लाख ही कमा रहा हूँ. अकाउंटिंग बुक में, अकाउंट बुक में इस तरह से एंट्री मारी कि तुमने 3 लाख कमाए, मतलब कि 2 लाख चले गए बाजू में. अब वो 3 लाख पे ही तुम्हें टैक्स पे करना है, मतलब कि टैक्स की चोरी की. कितने पे टैक्स नहीं पे किया? 2 लाख पे, तो वो 2 लाख बन गया तुम्हारा ब्लैक मनी. अब वो ब्लैक मनी कहीं और तुम काम करोगे लाइक बाइंग लग्जरियस प्रोडक्ट्स, लेकिन कैश में. यू नॉट डिपॉजिट इन बैंक, यू विल यूज दैट मनी विद इन दैट ईयर और बाय सम प्रॉपर्टी, एनीथिंग. The problem of black money starts increasing in our country, in any country it is, which is a problem or hindrance or it's an obstacle in our country's development. फिर लोगों को एक दूसरे पे या स्टेट पे भरोसा कम होता जा रहा है. ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑन स्टेट लॉज, जुडिशियल प्रोसेस, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डीलिंग्स, ये सब कम होता जा रहा है. ऑनेस्ट पीपल एक्सपीरियंस मोर फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट. अब गलत आदमी गलत काम कर करके becoming rich and richer. But on the other hand, in the same office एक honest आदमी भी काम कर रहा है, is at the same place. This is what I have heard from many people कि हमारी क्या गलती है, क्योंकि हम honest हैं तो you know we are not able to reach to that post and all in their profession. We are still there. तो it's okay. I would always prefer this part, right? क्योंकि करोड़ों कमाने के बाद भी हम घर में बैठे हैं आज, लाखों कमाने के बाद भी हम घर में बैठे हैं. यू आर नॉट एबल टू गो टू दैट बिग टूर्स एंड बिग 5-star रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एंड रिसोर्ट्स एंड शॉपिंग्स एंड ऑल, तो 4 महीने से घर में ही बैठे. तो आई वुड से दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर. यू शुड ऑलवेज
keep along with you. But yes, once again, रियलिटी है कि कई ऑनेस्ट लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है कि हमारी क्या गलती है, हम ऑनेस्ट है, ये हमारी गलती हुई कि हम इतना नहीं कमा रहे हैं. देन देर इज इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी इन इनकम which originates, and then it results into class struggle. Class struggle मतलब rich becomes richer and poor, right? Income difference. So human rights are violated. Due to corruption, morality and national character are at risk. Once again I told you कि हमारी कंट्री में अगर ऑनेस्टी ही कम रहेगी, कंट्री के लोगों में मॉरल वैल्यूज कम होगी, तो हमारी कंट्री को रिस्क फेस करना होगा. देयर विल बी प्रॉब्लम, क्योंकि फिर देश प्यार कम होगा, देशभक्ति कम होगी, नेशनलिस्टिक फीलिंग ही नहीं होगी, तो हाउ विल अ कंट्री मूव अहेड? सो आवर कंट्री नीड्स पीपल विद ग्रेट मॉरल वैल्यूज, राइट? एंड फॉल ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज देयर, तो हमारी इकोनॉमी कुछ जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगी. सो फॉर टुडे टिल हियर वी स्टॉप. आई विल स्टिल से स्टार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन 21. और हाँ, सैटरडे का जो मैंने पार्ट 2 रखा था वो कहीं पे एक देयर वाज सम प्रॉब्लम ओवर देयर, बट आई हैड वंस अगेन प्लेस्ड द पार्ट 2 ऑन संडे मॉर्निंग. तो वो देख लो. कई बच्चे उनको तो यही नहीं पता कि मैंने ऑलरेडी अब तक मैंने 3 पार्ट कर लिए हैं. दे आर स्टिल इन देयर वर्ल्ड. तो प्लीज़ कम आउट. अगर ये लेक्चर, ये वीडियो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आगे मैं 3 वीडियोस रख चुकी हूँ. एक संडे रखा है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट ठीक से देख लेना. एंड आज का ये हमारा 4th लेक्चर हुआ, रिलेटेड टू 4th वीडियो लेक्चर आई वुड कॉल इट, रिलेटेड टू चैप्टर 21 ऑफ एसएस. सो प्लीज़ गो थ्रू इट and take care, enjoy, study, be with your family, love them, love all. Thank you so much. Take care.